Hello students, myself Gayatri Chandra and this is our third lecture, and in this lecture we will learn data types and variables related to C++. Today we will see about what are the basic data types, what are the user-defined data types, what do you mean by derived data types, what is the declaration of variable, dynamic initialization of variables and reference variables. We will see about what is data type. A data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, float, character, etc. And basically in C++, data type is divided into three parts: primary data type, user-defined data type, and derived data type. First of all, we will see about primary data type. Under the primary data type, it is further categorized into three parts: integral data type, floating point data type, and void data type. So, user-defined data. Second one is user-defined data types. User-defined data types are that data type which are created with the help of primary data types. And the types of user data type are structure, union, enumeration, and type def. Third one is derived data type. They are the pointers, functions, and arrays. Now we will see each one in detail. Built-in data types. The basic data types provided by C++ are integral, floating, and void data type. Integral आप सब लोगों ने C में किया ही है. That is same as in C++. They are integer and character. Okay. Even you can apply modifiers that are signed, unsigned, long, short to the integer and character. And the size of integer is 2 bytes and character is 1 byte. Okay. Another one is floating data type, where you can store integer as well as decimal point of a particular number. And if you want to store large number, then you can use double. Okay. Now the size of float is 4 bytes and double is 8 bytes. And you can apply a long modifier to double as well as float. Okay. These two, integral and floating, these two we will discuss in all of the programs which are coming in this session. Next is void data type. Void is what? Void is like which returns nothing. अगर आपने फंक्शन बनाया है, जैसे सी में आपने फंक्शन बनाया होगा, तो उसमें क्या था कि अगर void लिखते हो दैट मीन्स फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है. जैसे void main. क्यों void main? क्योंकि main कुछ रिटर्न नहीं करता है. Okay, means void basically used for three purposes. First one is to specify the return type of function when it is not returning anything value. That I have already told you. To indicate an empty argument list to a function. अगर कोई फंक्शन आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि फंक्शन को खुद का टास्क परफॉर्म करने के लिए एडिशनल पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है, तो उसके ब्रैकेट्स में हम void लिखते हैं. ओके. और थर्ड वन इज इन द डिक्लेरेशन ऑफ जेनेरिक पॉइंटर्स. अगर आपको जेनेरिक पॉइंटर बनाना है विच कैन पॉइंट टू एनी ऑफ द डेटा टाइप वेरिएबल, ओके, तो उसमें लिखते हैं हम void star pointer name. ओके. जेनेरिक पॉइंटर कैन बी असाइन अ पॉइंटर वैल्यू ऑफ एनी बेसिक डेटा टाइप. जो मैंने अभी बोला आप लोगों को, जेनेरिक पॉइंटर जो है किसी को भी पॉइंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको उसका कन्वर्जन करना पड़ता है. तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने इंटीजर पॉइंटर बना है ip is a integer pointer. Okay, now gp is equal to ip, that means assigning an integer pointer to void. Fine. A void pointer cannot be directly assigned to the type pointers. In C++ we need to use cast operator. Means अगर character pointer बनाया है, जैसे that is ptr2 and void ptr1. Okay, दो pointers बनाए हैं मैंने. तो ptr2 is equal to ptr1. That is allowed in C, but not in C++. C++ में अगर void pointer अगर कोई particular type के pointer को point करता है, तो आपको casting करना पड़ता है कि pointer 1 जो है वो किस टाइप से. ठीक है. Next is user defined data types.
बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन। जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन जो है वो आप लोगों ने सी में ऑलरेडी पढ़ा है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन बोथ आर द कलेक्शन ऑफ variables where the data type of each variable can be a different. Okay. The new topic is classes and enumeration. Classes is a user defined data type which can be used just like any other basic data type once you declare. एक बार क्लास बना दिया फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के आप उसको यूज कर सकते हो। यानी क्लास के वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट से जाने जाते हैं। अभी क्लास का चैप्टर जब शुरू होगा तब वी विल डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में कि क्लास कैसे लिखना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्लास में डेटा मेंबर और फंक्शंस कैसे बनाने हैं, वो सब डिटेल में बाद में देखेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे अभी उतना ही जानना है कि क्लासेस क्या है। क्लासेस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उसका अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अनदर वन इज इन्यूमरेशन. An enumerated data type is another user-defined data type which provides the way of attaching names to numbers to increase the simplicity of code. जैसे आप 0, 1, 2 को इंडिकेशन देते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा 0 मीन्स व्हाट, 1 मीन्स व्हाट। अगर 0, 1, 2, 3, 4 को अगर आप नाम असाइन कर दोगे तो आपके लिए इजी रहेगा जब भी आप उसको एक्सेस करोगे। It uses enum keyword which automatically enumerates a list of words by assigning them वैल्यू 0, 1, 2 एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो सिंटैक्स लिखा है, इनम कीवर्ड है, उसके बाद मैंने इनम किस नाम का बनाया, शेप, और उसके अंदर मैंने 3 नाम दिए, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। दैट मीन्स 0, 1, 2। 0 यानी सर्कल, 1 यानी स्क्वायर एंड 2 यानी ट्राइंगल। यानी जब भी आपको फ्यूचर में यूज करना है तब 0, 1, 2 नहीं लिखोगे। इट विल बी इजी फॉर यू टू डायरेक्टली यूज सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ओके। यहाँ पे डिटेल में और एग्जाम्पल दिए हैं इन्यूमरेशन के। इन C++ enumerated data types has its own separate type. Therefore, C++ does not permit an integer value to be automatically converted to an enum value. ठीक है, तो डायरेक्टली हम अगर इन्यूमरेशन का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, तो हम नंबर से उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उसको हमें वो नाम से ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। जैसे शेप 1 इज इक्वल टू ट्राइंगल, यानी प्रीवियस एग्जांपल में ट्राइंगल कौन सा था, 2 था, तो हम ऐसे 2 को डायरेक्टली असाइन नहीं करेंगे, ट्राइंगल लिख के शेप 1 को असाइन करेंगे। दैट इज अलाउड इन C++। वेयरएज शेप 1 इज इक्वल टू 2 लिखोगे, दैट इज नॉट अलाउड इन C++। अभी बोला कि न्यूमेरिक अभी डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, आपको नेम से ही असाइन करना है। ओके, बाय डिफॉल्ट इन्यूमरेटर्स आर असाइन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग विद 0। तो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। बाय डिफॉल्ट सर्कल मींस 0, स्क्वायर मींस 1 एंड ट्रायंगल मींस 2। ओके, अगर आपको वो वैल्यूज को चेंज करने, स्टार्टिंग पॉइंट अलग रखना है तो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इनम कलर करके रेड, ब्लू, पिंक एंड पिंक इज इक्वल टू 3 लिखा है। दैट मीन्स रेड इज असाइन टू 0, ब्लू टू 1 एंड पिंक टू 3। ओके, 0, 1 एंड 3। दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो वेरिएबल दिया है, वैल्यू दिया है हमने, कलर का नाम, उसको 5 दे दिया। जैसे रेड इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स रेड इज इक्वल टू 5, ब्लू विल बी द 6 एंड ग्रीन विल बी द 7. So this is a small example and so small description about the what is enumeration and how you can create enumeration data type and how you will access it. Next is derived data types. Derived data types जो है वो आप लोगों ने C में already पढ़ा है. Okay, so we will have a quick revision of it. First one is arrays. Array क्या है? Array is a collection of similar data type elements. An array is in C++ is similar to the C. Okay. Fine. In C++, the size should be 1 greater than the number of characters in the string. Where in C, it will be the exact. देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि एक ही डिफरेंस है C और C++ में एरे जब बनाते हो, एक ही डिफरेंस है कि जब कैरेक्टर एरे बनाते हो ना, तो उसकी जो साइज है, कैरेक्टर लेंथ जो है, कैरेक्टर की स्ट्रिंग की जो लेंथ है, वो लेंथ से एक और ज्यादा पोजीशन देके उसको
एरे को इनिशियलाइज किया जाता है। जैसे सी में एग्जैक्टली उतनी ही देते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी तो 2 देते हैं सी में साइज स्ट्रिंग 1 की, बट सी प्लस प्लस में ए बी अगर असाइन करना है स्ट्रिंग 1 को तो उसका साइज हमें 3 करना पड़ेगा, यानी लेंथ प्लस 1 से उसकी साइज डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस। Functions in a C++ are different than in a C. There is a lots of modification in functions in C++ due to object-oriented concepts. तो functions में क्या क्या changes आएंगे because of C++ and object-oriented concepts. Okay, तो उसका पूरा अलग से टॉपिक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करना है सब कुछ। ठीक है, and another derived data type is pointers. Pointers भी आप लोगों ने C में पढ़ा है। ठीक है, pointers are basically used to point a variable, okay, address of that particular variable. Pointers are declared and initialized same as in C. जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बनाया int star ip, int pointer, और दूसरा मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि ip किसको पॉइंट करेगा, that is x, तो %x लिख दिया मैंने, यानी ip अगर कोई वेरिएबल को पॉइंट करता है तो वेरिएबल का एड्रेस के साथ उसको एंड देन वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, C++ adds the concept of constant pointer and pointer to a constant pointer. ठीक है, यहाँ पे C++ में आप constant pointer भी बना सकते हो, जैसे यूज करके यहाँ पे मैंने बनाया है care const star p2 hello, तो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन p2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट। ठीक है, now the next topic is variable declaration and initialization. Okay, variables are used in C++ where we need storage for any value which will help in the program. वेरिएबल क्यों यूज करते हैं कि अगर कोई वैल्यू हमें प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं तो कॉमन उसको एक नाम दे दो, तो नाम से एक्सेस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन मल्टीपल वेज, ईच विद अ डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनिंग, and variable is the name of memory location allocated to the compiler depending upon the data type of a variable. देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि int I is equal to 10 लिखा मैंने, तो डिक्लेयर किया I ऑफ टाइप इंटीजर और उसको वैल्यू क्या दी मैंने 10 दी है। ठीक है, तो देखो रैम जो है आपकी उसके अंदर एक मेमोरी स्लॉट होगा, उसका नाम क्या होगा I, और वो लोकेशन पे क्या लिखा जाएगा 10। तो जब भी वेरिएबल बनाते हो आप किसी भी टाइप का, प्राइमरी डेटा टाइप हो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो या डिराइव्ड डेटा टाइप हो, तो उसको ऐसे असाइन करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ विल यू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल, दैट इज सेम एज सी। ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में दिया है इंट आई। ठीक है, तो डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया है। मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हो, जैसे इंट आई जे के एक ही लाइन में सब कुछ लिख दो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब जब डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू टू एन ऑलरेडी डिक्लेयर वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन उसी का यूज होता है जिसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। तो इंट आई जो डिक्लेयर किया है उसको i इज इक्वल टू 10, यानी वो 10 जो हम i को दे रहे हैं दैट इज इनिशियलाइजेशन। if a variable is declared and not initialized by default, it will hold a garbage value. ठीक है, यानी बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू ले लेता है अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो। ठीक है, और इनिशियलाइज किए बिना ही उसको डिक्लेयर किए बिना ही वेरिएबल को अगर आप यूज कर रहे हो किसी एक्सप्रेशन में तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। जैसे ये वाले डायग्राम में लास्ट में दूसरा जो टेक्स्ट एरिया है वहां पे लास्ट में लिखा है इंट j इज इक्वल टू i प्लस j, क्योंकि j को हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया ही नहीं है तो हम j को यूज नहीं कर सकते। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। In this slide, we will see the example of variable declaration and initialization. इसमें हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको कैसे डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे वैल्यू असाइन करेंगे और उसको कैसे प्रिंट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कैरेक्टर ए जो है, ए किस टाइप का है, कैरेक्टर का, और सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। बी इंटीजर टाइप का है और डिक्लेरेशन के टाइम पे उसकी वैल्यू 30 दी गई। ठीक है, और बाद में a इज इक्वल टू एस, यानी एस कैरेक्टर को हमने a को असाइन किया। सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से, हेल्प से हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू
प्रिंट की है, ठीक है। जैसे द वेरिएबल a इज इक्वल टू a एंड द वेरिएबल b इज इक्वल टू b एंड द आउटपुट इज वेरिएबल a इज इक्वल टू s, क्योंकि हमने s असाइन किया है। आप अगर a को m असाइन करते तो m प्रिंट हो जाता है एंड द वेरिएबल b इज इक्वल टू 30, तो मैंने 30 किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू इनिशियलाइज वेरिएबल्स डायनामिकली। डायनामिकली मीन्स रन टाइम। अभी जो आपने प्रीवियस स्लाइड में जो दिखा ना, ये दिखा कि i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20, तो वो क्या है कि कंपाइल टाइम के i और j की वैल्यू उसके साथ बाइंड हो जाएगी कि i की वैल्यू 10 है और j की वैल्यू 20 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायनामिक इनिशियलाइजेशन मीन्स कंपाइल टाइम वेरिएबल तो बनेंगे लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो रन टाइम असाइन होगी। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डायनामिक इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे लिखा है कि the process of initializing variables at runtime is called dynamic initialization. This feature is supported by C++, not in C. In C++, a variable can be initialized at runtime using expressions at the place you declare. तो देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है int n is equal to strlen string, यानी स्ट्रिंग का जो भी साइज होगा वो वैल्यू इंटीजर n को असाइन होगी, तो वो आप प्रोग्राम में कहीं पे भी लिख सकते हो। तो ये हुआ डायनामिक इनिशियलाइजेशन हुआ n का। जैसे एरिया फ्लोट का दिया हुआ है कि एक स्टैटिक नंबर है 3.14 एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो ये क्या हुआ, एरिया का वैल्यू कब इनिशियलाइज होगा, जब इसको हम ये इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन, उसके बाद जो वैल्यू होगी रन टाइम, वो रन टाइम वैल्यू एरिया को असाइन होगी। सो दिस इज नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन, ओके। और आप उसमें मर्ज भी कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर भी करो प्लस डायनेमिकली इनिशियलाइज भी करो। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय आई, बराबर। तो सम डिवाइड बाय आई जो उसका जो भी आंसर होगा वो रन टाइम इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू होगी वो फ्लोट एवरेज करके एक नया वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर ये एक्सप्रेशन का आंसर स्टोर होगा, ओके। एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेफरेंस वेरिएबल्स। A reference variable provides an alias and it is a new variable introduction into the C++. It provides an alias for a previously defined variables. So उसका syntax, for example, if we make the variable sum or reference variable to the variable total, ये total मैंने already बना के रखा है और total को refer कर रहा है sum, then the sum and total can be used interchangeably to present that variable. अगर sum में change करते हो तो उसका इफेक्ट total में आएगा और total में कुछ change करते हो तो sum में भी आएगा, यानी एक ही जगह को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। तो किसी भी वेरिएबल पे काम करोगे तो अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सो सिंटैक्स फॉर द क्रिएशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज व्हाटएवर द डेटा टाइप ampersand name of the reference variable is equal to variable name to which that reference name is going to refer. एग्जाम्पल देखो तो ज्यादा पता चलेगा। जैसे मैंने फ्लोट टोटल करके 100 टोटल वेरिएबल बनाया 100 का, ठीक है। अभी सम टोटल को पॉइंट कर रहा है तो मैंने क्या लिखा, फ्लोट ampersand sum is equal to total. So total is a float type variable that has already been declared, fine, and sum is alternative name declared to present the variable total. यानी दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब भी आप टोटल में राइट साइड में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देखो कि स्टेटमेंट लिखा है, जैसे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, यानी थर्ड पॉइंट में टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 10। तो इसके अंदर जैसे ही टोटल में 10 ऐड होगा, यानी 100 है तो 110 होगा, 110 होगा, तो टोटल और सम दोनों की वैल्यू 110 हो जाएगी। जैसे अगर लाइकवाइज असाइनमेंट सम इज इक्वल टू 0 करते हो ना, तो टोटल और सम दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। एंड द रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब भी डिक्लेयर करते हो तो वो किसको रेफर करता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड इज नॉट एग्जैक्टली एड्रेस ऑपरेटर, therefore notation float and means reference to the float.
ठीक है। एंड हम पॉइंटर में भी यूज करते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल की साइड एंड नहीं लिखते, हम उसमें वेरिएबल की साइड पे एंड लिखते, क्योंकि हम एड्रेस पॉइंट कर रहे हैं वहां पर, हम यहाँ पे वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं। इसीलिए हम जब भी रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो उसके नाम के आगे हम %, लिखते हैं। Here you can see the example. See, in this example हमने क्या किया है, मेन के अंदर एक नंबर करके वेरिएबल बनाया, int number is equal to 10, ठीक है। तो int %, रेफरेंस नंबर इज इक्वल टू नंबर लिखा, यानी रेफरेंस नंबर इज रेफरेंस टू दी नंबर। तो डायग्राम में देखो, नंबर भी एक एरिया को पॉइंट कर रहा है और रेफरेंस नंबर भी किसी एक, वही एरिया जो नंबर पॉइंट कर रहा है वही रेफरेंस नंबर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर में 20 लिखा, स्टोर किया हमने, असाइन किया, रेफरेंस नंबर में 20 लिखा, यानी नंबर में भी 20 हो गया। नंबर इज इक्वल टू 30 लिखा, यानी रेफरेंस नंबर में भी 30 हो गया, क्योंकि दोनों कॉमन चीज को एक्सेस कर रहे हैं, कि कॉमन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, कि जैसे किसी भी एक वेरिएबल में चेंज होगा वो इफेक्ट सभी उसके रेफरेंस और एक्चुअल वेरिएबल में दिखेगा। ओके, आप टर्बो सी में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना तो आपको ज्यादा पता आएगा।